ٹی وی فار یو کے ناظرین، آپ کو حمید کیسر کا سلام پہنچے۔ اور آج میں آپ کو اپنی کتاب سیڑھیوں والے پل سے تیسرا افسانہ سنا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے صفر کا فرق۔ میں اور ڈاکٹر کباب ہاؤس پہنچے تو وہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اندر داخل ہوئے تو ہال کی روشنی اور دھیمے سروں کی موسیقی نے ہمارا استقبال کیا۔ کباب ہاؤس شہر کی بڑی مارکیٹ میں اچھا اور صاف ستھرا ریسٹورنٹ تھا، جس کے کھانوں کے اعلیٰ معیار اور ذائقوں کا چرچا شہر بھر میں عام تھا۔ شام ہوتے ہی اطراف میں میلہ سا لگ جاتا۔ ریسٹورنٹ کے اندر تو کیا، باہر بھی سڑک کے کنارے دن ڈھلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میز کرسیاں لگ جاتی۔ رات کے 8 بجے کے بعد بازار کی اس سمت ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہ جاتا۔ البتہ اگر کوئی گاڑی ادھر آتی تو کباب ہاؤس کے باہر روشنیوں کے سیلاب میں تیار ہوتے چپل کباب، سیخ کباب، چکن ٹکا اور روسٹ کی خوشبو، اور نظارہ ایسا نہ ہوتا جو دیکھنے والوں کو آسانی سے گزر جانے دیتا۔ چنانچہ سر شام شروع ہونے والا خور و نوش کا یہ میلہ شب کو اگلے روز کی سرحد پر چھوڑ کر تمام ہوتا۔ رات دیر تک کھلا رہنے کی وجہ سے یہ میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا، اس لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر یہاں آتا۔ ہم ہال میں پہنچ کر بازار کی سمت کھلنے والی کھڑکی کے ساتھ لگی پسندیدہ میز کی طرف بڑھے، جو اتفاق سے کچھ ہی دیر پہلے خالی ہوئی تھی۔ مجھے بہت اطمینان ہوا۔ اس میز کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے پورا ریسٹورنٹ نظر میں رہتا، اور جب اندر کے ماحول سے جی گھبرانے لگتا تو کھڑکی سے باہر کا نظارہ بھی بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ ہماری میز کی دائیں جانب وسیع ہال اور سامنے صدر دروازے سے ملحق کاؤنٹر تھا۔ تمام بہرے تیزی سے آ جا رہے تھے۔ بائیں ہاتھ کھڑکی سے باہر دیکھا تو زندگی بدستور متحرک نظر آئی۔ زیب میرا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا، اب کہ وہ بہت دنوں بعد میرے ہاں آیا تھا۔ چند روز پہلے میڈیکل فائنل ایئر کا امتحان دے کر بور ہو گیا تو چلا آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ نہ صرف ہاؤس جاب یہاں مکمل کرے، بلکہ وہ یہیں مستقل قیام بھی کرے۔ بھائی ڈاکٹر، اپنا گھر چھوڑ کر تمہارا یہاں ہاؤس جاب کا حصول میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں نے حال پر ایک طاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ یہ راز نہیں پا سکے بھیا؟ اس کی آنکھوں میں خاصی چمک تھی۔ پھر بھی پتہ تو چلے، آخر ایسی کون سی خوبی ہے اس شہر میں؟ میں نے کریدا۔ آپ بھی بہت بولے ہیں، نیلم کو بھول گئے ہیں، جو پگلی میرے بارے میں فون کر کے آپ کے کان کھا جاتی ہے۔ مسرت تھی کہ ڈاکٹر کے چہرے سے پھوٹی پڑتی تھی، اور وہ باوجود کوشش کے اسے چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی فون کیے دیتا ہوں کہ تم نے چپ کے شہر میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ میں نے مصنوعی انداز میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، میں دراصل اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ شریر بچوں کی طرح سچ مچ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اتنے میں ویٹر مینیو کارڈ رکھ کر چلا گیا۔ ہاں تو زیب کیا چلے گا؟ میں کارڈ زیب کی طرف سرکا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بازار کی رونق ابھی باقی تھی۔ سامنے سڑک کے پار بیکری والا سٹول پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میڈیکل سٹور کا سیلز مین جلدی دوائیں لفافوں میں ڈال کر رقم وصول کر رہا تھا۔ اسٹیشنری کی دکان میں خواتین اور بچوں کا رش قدرے زیادہ تھا۔ صوفی حلوائی دودھ کے کڑاہ میں چمچہ چلانا روک کر بار بار ناک صاف کر رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر دونوں ٹانگوں سے معذور بھکاری کی دہاڑی شاید پوری نہیں ہوئی تھی، جبھی تو وہ پر امید نگاہوں سے ہر آنے جانے والوں سے التجائیں کیے جا رہا تھا۔ 1 روپے کا سوال ہے بابا۔ مان فٹ پاتھ پر سامنے سے آنے والے 2 لڑکوں نے میری نگاہیں جھکڑ لیں۔ چھوٹے کی عمر 8 سال اور بڑا اس سے 1 ہی سال بڑا لگتا تھا۔ شکل و صورت سے دونوں بھائی معلوم ہوتے تھے۔ بڑے لڑکے نے سر پر کپڑے کا پیون زدہ بڑا سا تھیلا اٹھا رکھا تھا، جس کے چھیدوں میں سے ردی کاپیاں اور کتابیں جھانک رہی تھیں۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرے۔ چھوٹے نے لپک کر شوکیس کے ساتھ انگلی لگا دی اور 2 زانو ہو کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے رنگ برنگے خوبصورت اسٹیشنری آئٹموں سے بھرا شوکیس دیکھنے لگا۔ وہ بڑے بھائی کو مخاطب کرنا چاہتا تھا، جو اسے چند قدم
आगे निकल गया था। कच्ची उम्र में भी बड़े भाई के चेहरे पर बला की संजीदगी सिमट आई थी, लेकिन छोटे के चेहरे पर मुतहरक न्यून साइन की तरह शादमानी की तहरीरें बआसानी पढ़ी जा सकती थीं। वो शायद किसी खूबसूरत कलम या ज्योमेट्री बॉक्स की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था, लेकिन बड़ा भाई जो सर पर रखे बोझ से पहले ही हल्कान दिखाई देता था, उसे छोटे की मासूम सी ख्वाहिश भी शायद नागवार गुजरी थी। जब ही तो वो तेजी से मुड़ा और छोटे का हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए आगे बढ़ गया। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। भाईजान, रात के अंधेरे में फिर किसी कहानी की तलाश है? ज़ेब ने मैगजीन की वर्कगर्दानी छोड़कर मुझे मुतवज्जो करने की कोशिश की। कुछ नहीं यार, आते जाते लोगों को देखना और उनके चेहरों की टूटी फूटी तहरीरें पढ़ना अब एक आदत सी हो गई है। और तुम डॉक्टर लोग हो, मरीज को अपना मर्ज खुद ही बताना पड़ता है। तुम लोगों में तो हिकमत नाम की कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही। मैंने डॉक्टर को छेड़ते हुए कहा। वो चूँकि पूरा डॉक्टर नहीं बन सका था, इसलिए खसियाना होकर मुस्कुरा दिया। अभी तक खाना नहीं आया, ज़ेब ने गैर इरादी तौर पर घड़ी देखते हुए कहा। मैं जवाबन कुछ कहने ही वाला था कि डबल एक्शन डोर वेटर का दबाव पड़ने से चिरचिराया और वो इसमें से बरामद हुआ। खाने की ट्रे सामने आई तो सीख कबाबों, चिकन टिक्कों और रोगनी नान की खुशबू ने मेरी भूख को दो आच्छा बना डाला। हमने बिला तकल्लुफ़ खाना शुरू कर दिया। ऐसे में रेस्टोरेंट का डबल एक्शन डोर फिर चिरचिराया, मगर अब कि उसकी चिरचिराहट में पहले जैसी तेज़ी और रवानी न थी। यूँ महसूस होता था जैसे कोई भूखा और कमज़ोर हाथ उसे धकेल रहा हो। मेरी तजस्सुस भरी निगाहें वहीं अटक गईं। दूसरे ही लम्हे दो लड़के दरवाजे के प्रेशर को मुश्किल तमाम धकेल कर अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने पहले ही नज़र में उन्हें पहचान लिया। ये वही लड़के थे जिन्हें थोड़ी देर पहले खिड़की से बाहर फुटपाथ पर दिखा था। तब उन्होंने कपड़े का बड़ा सा बोसीदा थैला उठा रखा था। अब वही खाली थैला बड़े लड़के ने चुराई हुई मुर्गी की तरह बगल में दाब रखा था। दोनों ने लम्हा भर के लिए भरे पूरे रेस्टोरेंट पर एक ताराना निगाह डाली, जहां हर मेज़ पर अनवाع अक़साम के खानों की खुशबू दावत ताम दे रही थी। उनकी फटी फटी वीरान आंखों में भूख मस्त होकर किकलिर डालने लगी। मेरा नवाला हल्क में ही रह गया। अलबत्ता डॉक्टर हस्बे आदत अपनी दाईं टांग हिलाते हुए बड़े मज़े से खाना खा रहा था। दोनों भाइयों ने टाट स्कूल की मखसूस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पुरानी हो जाने की वजह से उसके रंग को कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता था। बगैर बटनों के खुले कफ उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे। इसी असना में दोनों झिझकते हुए काउंटर तक पहुंचकर मैनेजर से कुछ कह रहे थे। मुझे उन पर तरस आने लगा। मैंने सोचा मुमकिन है वो अपने लिए या किसी पड़ोसी के लिए रोटियां लेने आए हों। भाईजान, क्या खाने से मक्खी बरामद हुई है? जो यूँ हाथ खींचकर बैठ गए हैं, ज़ेब ने शौकी से कहा। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल मैं खाना आहिस्ता खाने का आदी हूँ। मैंने खाना जारी रखा। रेस्टोरेंट का काउंटर और सदर दरवाज़ा बिल्कुल मेरे सामने थे, इसलिए खाना खाते हुए मेरी निगाहें बेख्तियार उस समत उठ जाती। मैंने देखा कि दोनों लड़के काउंटर के बराबर लगी लकड़ी की खूबसूरत झिलमिल के अकब में एक वेटर के साथ गायब हो गए। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये तो रोटियां लेने आए थे, फिर उधर क्या करने गए हैं? मुमकिन है उन्हें ज़्यादा रोटियां दरकार हों और वो वहाँ से मिलती हों। मैं यूं ही सोचों में गलता खाना खाता रहा। डॉक्टर की दाईं टांग मौसीकी की नरम सुरों के साथ साथ बदस्तूर थरक रही थी। कभी कभी उसका पाँव मेरे पाँव से टकरा जाता तो मेरी तवज्जो बढ़ जाती। हाँ तो ज़ेब, कल डॉक्टर सईद के यहाँ जा रहे हो ना, हाउस जॉब के सिलसिले में? मैंने ज़ेब से यूं ही सिलसिला कलाम जोड़ने के लिए पूछा। जी, डॉक्टर सईद ने सुबह 10 बजे पोली क्लिनिक पहुंचने को कहा है, ज़ेब बोला। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ मेडिकल स्टोर खुला था और हलवाई की दुकान का चिकनाहट और धुएं से अटा बदम सा बल अभी तक रोशन था। सूफी हलवाई ने पूरे कपड़े पहन लिए थे। फुटपाथ पर पड़े भिखारी को कोई बड़ी बड़ी मूँछों वाला शख्स हाथ गाड़ी में डालकर ले जा रहा था। अंदर हाल में अब लव स्टोरी 42 की झनकार बज रही थी।
यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। यार ज़रा गरम गरम नान लाना, ये तो पड़े पड़े ठंडे हो चुके हैं। ज़ेब ने करीब से गुजरते हुए वेटर को मुखातिब किया। थोड़ी देर बाद गरम नान की खुशबू ने मुझे फिर से खाने की तरफ राग़िब किया। मैं बज़ाहिर खाना खा रहा था, लेकिन जहन मुतवातर इधर उधर भटक रहा था। खाना ख़त्म करके हम इलायचियों वाला पेशावरी कहवा सिप करने लगे, मगर दोनों लड़के अभी तक झिलमिल के पीछे से बरामद नहीं हो सके थे। मैं न समझ पा रहा था कि वो अकब में क्या करने गए हैं। मुमकिन है वो दूसरी जानब झूठे बर्तन मांजने गए हों, लेकिन वो तो रोटियां लेने आए थे। शायद बर्तन मांजने के एवज़ उन्हें रोटियां मिले, मगर उनकी ज़ाहरी हालत तो ऐसी ना थी। वो टाट स्कूल के ही सही, मगर थे तो तालिब इल्म। मैंने तमाम मुमकिनात पर गौर व खोज कर डाला, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सका। मेरा इज़्तिराब बरकरार रहा। साहब और कुछ लाऊं? वेटर मसनूई मुस्कुराहट के साथ सामने आन मौजूद हुआ। मैंने ज़ेब की तरफ देखा तो कहवे के आखिरी घूंट के बाद उसके चेहरे पर शिकम सेरी की कैफियत नुमायाँ हो गई थी। बस यार बिल ले आओ, मैंने बेरे से जान छुड़ाई। दफातन झिलमिल के अकब में दरवाज़ा खुला और तेज़ रोशनी का एक लपका आया। दोनों लड़के आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बाहर काउंटर पर आ गए। मुशक्क़त के बाद मिलने वाली मजदूरी की मुसरत उनके चेहरे पर नुमायाँ थी। उनके पीछे वही वेटर कमरे की लाइट बंद करके काउंटर पर आ गया। बड़े भाई ने दोनों हाथों से शायद रोटियों से भरा थैला संभाल रखा था। हमारा बिल अभी काउंटर पर तैयार हो रहा था। मेरे तजस्सुस का कोई ठिकाना न था। मैं मेज़ पर बैठकर इंतज़ार करने के बजाय उठकर काउंटर पर आ गया। ज़ेब वाशरूम की तरफ चला गया। रेस्टोरेंट का हाल बदस्तूर पैक था। लोग खाने और मौसीकी दोनों से जिस्म और रूह को सैराब करने में मसरूफ़ थे। छोटा लड़का मुंह में अंगूठा दिए हसरत से हाल की जानब मुड़कर ये सब कुछ देख रहा था। बड़े लड़के ने थैले से ठोका देकर उसे अपनी जानब मुतवज्जो किया, जैसे कह रहा हो, मुझे पता है मुन्ने भाई, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, बस ज़रा सा सब्र और पहले घर तो पहुंच लें। अब रोटियों वाला थैला छोटे भाई ने थाम लिया था। बड़े ने कमीज़ की साइड की जेब से 10 का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकालकर वेटर की तरफ यूं बढ़ाया जैसे चोरी कहो। काउंटर मैनेजर अभी तक हमारा बिल बनाने में मसरूफ़ था। अबे ओ, ये 10 का नहीं चलेगा, 5 और निकाल, पूरे 3 किलो टुकड़े हैं और हैं भी रोगनी के। बेरा तहकीर आमेज लहजे में गिर जा। लेकिन अंकल, पहले तो 10 रुपये में आते थे। बड़ा भाई मुझसे निगाहें चुराते हुए हंसतगी से बोला। मैं उसकी अना का ख्याल करके बज़ाहिर लातअल्लुक़ से होकर मैनेजर की तरफ देखने लगा। अजी पहले आते थे, अब नहीं। तुम लोगों ने अब रूखे सूखे छोड़कर रोगनी जो चुबाने शुरू कर दिए हैं। ला निकाल 5 रुपये और, नहीं तो जा जाकर अंदर वापस फेंका, हमारे जानवर खा लेंगे। बहरे की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। छोटा दांतों में होंठ काटने लगा था। बड़े के चेहरे पर सरासीमगी फैल गई। मेरा बिल 150 रुपये बना था और उसका 15 रुपये। मेरे और उसके दरमियान महज 0 का ही तो फ़र्क था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।